آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ حج 2026 کی تیاریوں کا آغاز۔ چیئرمین تلنگانہ حج کمیٹی مولانا خسرو پاشا نے ہاسپٹل کا کیا دورہ، ٹیکہ اندازی کے عمل کا کیا تفصیلی معائنہ۔ کل میں اتحاد المسلمین مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات میں ہمایوں کبیر کی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرے گی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کیا اعلان۔ موسی ریور فرنٹ پروجیکٹ سے کوئی بے گھر نہیں ہوگا، عوام میں گمراہ کن پروپیگنڈا نہ کیا جائے، کونسل میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دیا بیان۔ بی آر ایس پارٹی نے اسمبلی کی کارروائی سے کیا واک آؤٹ، حکومت پر ریٹائرڈ ملازمین کے مسائل کی عدم یکسوئی کا لگایا الزام۔ سنتوش نگر کے موئن باغ میں 26 سالہ نوجوان کا کیا گیا قتل، مہلوک کے ساتھیوں کی کارروائی۔ آؤٹر رنگ روڈ پر خوفناک سڑک حادثہ، ایک شخص ہلاک اور 3 ہوئے زخمی۔ میلادیوپلی میں حقہ سینٹر پر کیا گیا دھاوا، 10 افراد کو لیا گیا تحویل میں۔ بندہ گڑا میں واقع پلاسٹک گودام میں اچانک آتش زدگی، حادثہ، کثیر مالی نقصان کا لگایا گیا تخمینہ۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے اتوار کے روز سدی پیٹ کے گاؤں انسان پلی میں نئے ضلعی جیل کا افتتاح کیا، جو ریاست کے اصلاحی نظام کو مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ یہ ضلعی جیل موجودہ سب جیل کو اپ گریڈ کر کے مکمل سہولیات سے آراستہ ادارے میں تبدیل کیا گیا ہے، جو 32 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور جدید بنیادی ڈھانچے، بہتر سیکورٹی نظام اور بحالی کی مربوط سہولیات سے لیس ہے۔ اس جیل کی مجاز گنجائش 415 قیدیوں کی ہے، جس میں 50 خواتین قیدیوں کے لیے ایک مخصوص بیرک بھی شامل ہے۔ اس اقدام کا مقصد جیلوں میں بھیڑ کم کرنا، رہائشی حالات کو بہتر بنانا اور سیکورٹی کے معیار کو مضبوط کرنا ہے۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی توقع ہے کہ اپریل میں تلنگانہ کا دورہ کرتے ہوئے بعض ترقیاتی پروجیکٹس کا سنگ بنیاد اور افتتاح انجام دیں گے۔ موثوق ذرائع کے مطابق وزیر اعظم ہند نریندر مودی اپریل کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں تلنگانہ کا دورہ کر سکتے ہیں۔ ریاست سے تعلق رکھنے والے بی جے پی کے مرکزی وزراء کشن ریڈی اور بنڈی سنجے کمار نے مرکزی پروجیکٹس کے آغاز کے لیے وزیر اعظم سے دورے کی خواہش کی ہے۔ بتایا گیا کہ تامل ناڈو اور کیرلا کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی مہم میں حصہ لینے کے دوران وزیر اعظم تلنگانہ کے دورے کو خطیت دیں گے۔ کئی اہم پروجیکٹس کے آغاز کے علاوہ وزیر اعظم نریندر مودی بی بی نگر میں تعمیر کردہ آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا دورہ بھی کر سکتے ہیں۔ حج 2026 کی تیاریوں کے سلسلے میں اہم اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں تلنگانہ حج کمیٹی چیئرمین مولانا خسرو پاشا نے حیدرآباد کے ایک ہاسپٹل کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے عازمین حج کے لیے فراہم کی جانے والی طبی سہولیات اور دیگر انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مولانا خسرو پاشا نے اس بات پر زور دیا کہ حجاج کرام کی صحت اور حفاظت کو اولین ترجیح دی جائے اور تمام طبی انتظامات معیاری اور بروقت فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے متعلقہ حکام اور طبی عملے سے بات چیت کرتے ہوئے ہدایت دی کہ عازمین حج کے لیے مکمل طبی معائنہ، ویکسینیشن اور ہنگامی طبی سہولیات کو بھی یقینی بنایا جائے تاکہ سفر حج کے دوران کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حج ایک مقدس فریضہ ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے بہترین انتظامات حکومت اور متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام محکمے باہمی تعاون کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ عازمین کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہونے پائے۔
तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से कोई बेघर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ तरक्की पर तवज्जो दे रही है। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि इस सिलसिले में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा ना किया जाए। कौंसिल में वज़ीर-ए-आला ने कहा कि मधु पार्क बफर जोन में है, इस अपार्टमेंट में कोई फ्लैट नहीं खरीदेगा। वज़ीर-ए-आला का कहना था कि अगर अपोजिशन हुकूमत को तामीरी मशवरे देती है तो इसे कबूल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने बताया कि बेगमपेट एयरपोर्ट के वस्ती इलाके में अंडरपास तामीर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुल्क में रनवे के पास कहीं भी इस तरह का अंडरपास नहीं है। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद मरकजी हुकूमत से मंजूरी हासिल की गई है। మన ఒక అపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన బాధితులు ఆపండి అంటారు. మేము అడగనే లేదు, మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్తున్నాం. మీకు సమస్య ఉంది, సమస్యను ఎట్లా కావాలనో చేయండి అని అంటే మీరు దాన్ని ప్రచారం కోసం వాడుకోకండి. ఈరోజు ఆడ గాంధీ సరోవర్ కట్టడానికి 98 ఎకరాలు డిఫెన్స్ ల్యాండ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది అధ్యక్ష. టూరిజం దగ్గర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఇంకొక 100 ఎకరాల ల్యాండ్ దాదాపు ఉంది. ఆ అపార్ట్మెంట్స్ ల్యాండ్ తీసుకోకపోయినా ప్రభుత్వానికి ఆ ప్రాజెక్టుకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. ఆ ప్రాజెక్టులో అపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్న మిత్రులకు నేను చెప్పేది ఒకటే, 2005-6లో మీరు పర్మిషన్ తెచ్చుకున్నప్పుడు అది చిన్న నాలా కింద చూపించి 9 మీటర్ల బఫర్ జోన్ చూపించి మీరు అనుమతులు తెచ్చుకున్నారు. 2012లో 2016లో బఫర్ జోన్ 50 మీటర్లకు, అది మూసీ నది పరివాహక ప్రాంతం కాబట్టి 50 మీటర్ల బఫర్ జోన్ డిఫైన్ అయిపోయింది. 50 మీటర్ల ప్రకారం మార్క్ చేస్తే సగం అపార్ట్మెంట్స్ ఈరోజు బఫర్ జోన్లో ఉన్నాయి. రేపు భవిష్యత్తులో అది కొనుక్కోవడానికి అమ్ముకోవడానికి పనికిరాదు. రేపు భవిష్యత్తులో ఏమీ చేసుకోలేరు, మీకు నష్టం జరుగుతుందని మాత్రమే చెప్తున్నాము. వాళ్ళకి ఇష్టమైతే ఆ ల్యాండ్ ప్రభుత్వ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం ఇప్పుడు చేస్తే వాళ్ళకు నష్టపరిహారం ఇచ్చి ప్రత్యామ్నాయం చూపించడానికి మాకు అభ్యంతరం లేదు అధ్యక్ష. ఎవరిని నిరాశ్రయులను చేస్తలేము అధ్యక్ష. रियासती हुकूमत पीर 23 मार्च से अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस को वाहन पोर्टल से मरबूत करना शुरू करेगी, जो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और दीगर खदमात के लिए एक खदमी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस इक़दाम से इंतज़ामी अमल में ताक़ीर, मिल्कियत की तफसीलात, RTO ऑफिस के दौरे, रेवेन्यू ट्रैकिंग, कागज़ी कार्रवाई और बुनियादी तौर पर बैन रियासी गाड़ियों की मुंतकली के दौरान मालिकान को दरपेश चैलेंजेस जैसे मसाइल को हल करते हुए इन्हें आसान बनाने की सही की जा रही है। नायब वज़ीर-ए-आला और वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि साबिक़ा BRS हुकूमत में मुलाजिमीन के 3 ग्रानी अलाउंस ज़ेर इल्तिवा थे। कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आने के बाद उन बकायाजात को अदा किया है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अगर BRS हुकूमत अच्छा काम करती तो आज ऐसे मसाइल नहीं होते। పెండింగ్ ఉన్నటువంటి బకాయిలు ఈ ప్రభుత్వానికి వారసత్వంగా వచ్చింది అధ్యక్ష. మీరు సక్రమంగా ఆనాడు చేసి ఉంటే అసలు ఈ సమస్యలే ఉత్పన్నమయ్యేది కాదు. కరువు భత్యం డిఏ విషయంలో గత BRS ప్రభుత్వం 1/7/2022, 1/1/2023 మరియు 1/7/2023 నుండి ఉద్యోగులకు ఇవ్వాల్సిన డిఏ బకాయిలు ఇవ్వకపోవటం వల్లనే ప్రస్తుత ప్రభుత్వమే ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. 3 డిఏ బకాయిలు మీరు పెండింగ్ పెట్టిపోయారు. 3 ఆ మూడింటిని మేము వచ్చిన తర్వాత వాటిని క్లియర్ చేశాం. మీరు మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాట ఏదో ఉద్యోగస్తుల మీద మీకే విపరీతమైన ప్రేమ ఉంది, వాళ్ళ కోసం చేశారు, ఈ ప్రభుత్వానికి మానవీయ కోణమే లేదా. 100% ఈ ప్రభుత్వానికే మానవీయ కోణం ఉంది అధ్యక్ష. వీళ్ళు మాట్లాడే అన్నీ కూడా సక్రమంగా లేవు. తదుపరి ఇతర పెండింగ్ డిఏలను కూడా సాధ్యమైనంత త్వరగా ప్రాధాన్యత క్రమంలో విడుదల చేయడానికి మా ప్రయత్నం అంతా చేస్తా ఉన్నాం.
चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद की तरक्की में उनके अहम रोल का दावा किया है और कहा है कि कई अहम इदारे उनके दौरे हुकूमत में कायम किए गए। चंद्रबाबू नायडू ने इतवार को गच्चीबावली में वाक़ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में साउथ एशिया लर्निंग समिट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सिक्योरिटी और दीगर असरी टेक्नोलॉजीज़ पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। ड्रोन और एयर एम्बुलेंस जैसी खिदमात को तोसी देने के लिए दुनिया भर में तजुर्बात किए जा रहे हैं, जबकि हैदराबाद की तरक्की में अहम रोल का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद को आलमी शहर के तौर पर तरक्की देने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर के लिए 5000 एकड़ अराजी हासिल की गई थी और नलसा, ट्रिपल आईटी जैसे बैनुल-अक़वामी इदारे उनके दौर में ही कायम किए गए। उन्होंने कहा कि सिर्फ 9 माह में उनकी हुकूमत ने दरिया कृष्णा के पानी को हैदराबाद मुंतकिल करने का कारनामा अंजाम दिया था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुबैना इनहराफ के मामले में रुकन असम्बली डी नागेंद्र को नोटिस जारी की है। वाज़ेह रहे कि बीजेपी के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने स्पीकर की तरफ से नागेंद्र को क्लीन चिट देने पर दरख्वास्त दाखिल की थी। रिटायर मुलाजमिन के बकायाजात को लेकर बीआरएस पार्टी ने हुकूमत के रवैये पर एहतजाज करते हुए पीर की सुबह असम्बली की कार्रवाई से वॉकआउट किया। बीआरएस लीडर हरीश राव ने कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन के बकायाजात अदा नहीं किए जा रहे हैं। हुकूमत बरसरे खिदमात और रिटायर्ड मुलाजमीन के मसाइल की एकसुई में नाकाम रही है। इससे पहले हरीश राव ने कहा कि फिलिपाइन को धान बरामद करने में घोटाला किया गया है। అధ్యక్ష, ఇది నాఫెడ్ జేఎండి గారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశారు. అదేవిధంగా మరొక లేఖ కూడా నాఫెడ్ ఎండి గారు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశారు. నేను అడుగుతా ఉన్నా, నాఫెడ్ అనే కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ మేము మీకు కాకినాడ పోర్టుకు బియ్యం రాగానే మీకు వెంటనే డబ్బులు చెల్లిస్తాం, మాకు అవకాశం ఇవ్వండి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థకి ఇవ్వకుండా ఒక ప్రైవేట్ సంస్థకు ఎందుకు ఇచ్చారు? ఈ బియ్యం ఎగుమతి కోసం మీరు ఏమైనా టెండర్లు పిలిచారా? ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పిలిచారా? లేదు నామినేటెడ్ బేసిస్ లో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అడుగుతుండగా కూడా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థకు అవకాశం ఇవ్వకుండా ఆ ప్రైవేట్ సంస్థకు ఎందుకు ఇవ్వవలసి వచ్చిందో మంత్రి గారు సమాధానం చెప్పాలి అధ్యక్ష. మూడోది అధ్యక్ష, ఇప్పుడు 22,500 ఎగుమతి చేశామన్నారు. మరొక 7,500 మెట్రిక్ టన్నులు ఒక సంవత్సరం నుంచి కాకినాడ పోర్టులో పడి ఉన్నాయి. మరి ఆ కాకినాడ పోర్టులో ఏడాది నుంచి బియ్యం ఉంటాయి అధ్యక్ష, ముక్కిపోతాయి, పురుగులు పట్టిపోయినాయి. ఆ 7,500 మెట్రిక్ టన్నులు पीआरएस के अरकान असम्बली और कानून साज कौंसिल के अरकान ने तेलंगाना असम्बली के करीब गन पार्क के पास एहतजाज किया। एहतजाजी अरकान असम्बली में फीस रीएम्बर्समेंट समेत इंतखाब के दौरान किए गए 6 वादों को पूरा करने की मांग कर रहे थे। एहतजाजी मुजाहिरीन हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थी। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मगरबी बंगाल के असम्बली इंतखाबात में मुकाबले का ऐलान किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी मगरबी बंगाल के आइंदा असम्बली इंतखाबात में हुमायूं कबीर की आम जनता अनन्या पार्टी के साथ इत्तेहाद में हिस्सा लेगी। कि असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, हमारी आवाज़ को मजबूत किया जाए, हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर बेबाक तरीक़े से ऐवान असम्बली में गरीब और मज़लूम आवाम की आवाज़ को उठाए। और आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में
पिछले 15 साल से वहाँ पर 3 मरतबा के वज़ीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि क़रीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट हैं। बहुत से नाइंसाफ़ियों की कहानियाँ और दास्तानें भी हैं जो ये लोग सिर्फ सेकुलरिज़म के नाम पर वोट तो हासिल करते हैं, मगर जहाँ पर मजलिस हिस्सेदारी की बात करती है, जहाँ पर मजलिस शराकतदारी जमहूरियत की जो बात हमारे बुज़ुर्गों ने की थी उसको अमल करने का मुतालबा करती है, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो ये बात भी, क्योंकि ये अवामी जलसा नहीं है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान का एक ईद मिलाद की तकरीब है, मैं ये ज़रूरी समझा कि आपके सामने भी इस बात को रखूं। और शायद बहुत से लोग आप नहीं जानते होंगे कि मालदा में जब पंचायत का इलेक्शन हुआ था, उस मालदा में मजलिस को 60,000 वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि मजलिस वहाँ पर मेहनत नहीं कर रही है। पिछले बार भी हम लोग 5 या 6 सीट पर इलेक्शन लड़े थे। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इन्हीं सीटों पर या जहाँ पर भी बातचीत होगी उनसे उसको तय करके अप्रैल 23 और 26 को 2 मरहले में वहाँ पर इलेक्शन है। तो ये हमारी कोशिश होगी और आप अल्लाह से दुआ भी करिए कि हम लोग अपनी इस कोशिश में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने कौमी और रियासती जमातों को मुफ्त नशरियाती वक्त के लिए डिजिटल वाउचर्स मुख्तस कर दिए हैं। इन सियासी जमातों के लिए मुफ्त नशरियाती वक्त दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर दस्तयाब होंगे। इसके लिए ECI ने आज बाकायदा डिजिटल वाउचर्स मुख्तस किए हैं। बंदरगुड़ा के इलाके इस्माइल नगर में वाक़ एक प्लास्टिक गोदाम में अचानक आतिशज़दगी हादसा पेश आया। मज़कूरा गोदाम बग़ैर किसी परमिशन के चलाया जा रहा था, जबकि मकामी अफराद भी इस गोदाम से नाला थे। ताहम आतिशज़दगी की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड मकामी हादसे पर पहुंचे और जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। इत्तला पाकर साबिक़ मजलिसी कॉरपोरेटर हफीज़ पटेल भी मकामी हादसे पर पहुंचे और बचावकारी कामों की निगरानी की। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम कसीर माली नुकसान का तखमीना लगाया जाना बाकी है। मुताल्लिक़ा पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी। थोड़ा पीछे रहो, प्लीज पीछे कैसा भी रहता वो क्यों बोले तो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक खाने बोल के अच्छा जलाल बाबा नगर तपुर में वाक़ एक मकान में सरक़े की वारदात अंजाम दी गई। पुलिस के मुताबिक मकान से 20 लाख रुपए नकद रकम के अलावा तलाई जेवर नुक़रवी जेवर उड़ा लिए गए। मुतल्लिक़ा पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। पैसे कहीं में थे? उधर थे, इधर भी थे, उधर भी थे, दो साइड।
हैदराबाद के संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ मोइन बाग में इतवार की शब 26 साला नौजवान का कत्ल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक महलूक नौजवान को दोस्तों ने कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त सैयद लईख के तौर पर की गई है, जबकि मुलजिमान की शिनाख्त आदिल और सलमान उर्फ गोली के नाम से की गई है। ज़राए के मुताबिक तीनों दोस्त थे और गांजा मास्टर्स के नाम से बदनाम थे। बताया जाता है कि ये तीनों अफराद मुख्तलिफ मुजरिमाना मुकदमात में हालिया दिनों जेल भी जा चुके थे। बताया जाता है कि आदिल और सलमान ने लईख को शमशान घाट पर बुलाया और चाकुओं से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड नारसिंगी पुलिस एकेडमी के करीब पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और 3 दिगर जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक एक बर्ख रफ्तार कार ने DCM गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दिगर 3 जख्मियों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब कार शमशाबाद एयरपोर्ट से गच्ची बौली की जानिब जा रही थी। वाक़े के बाद इलाके में शदीद ट्रैफिक जैम देखा गया। इब्तदाई जांच में तेज़ रफ्तार ड्राइविंग को हादसे की वजह करार दिया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए हादसे की जांच शुरू कर दी है। मैलारदेपल्ली के इलाके में वटापल्ली में पुलिस ने गैर कानूनी हुक्का सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि 22 मार्च की अलग सुबह तकरीबन 2:30 बजे खुफिया इत्तला पर यह छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। ये हुक्का सेंटर बगैर किसी कानूनी इजाज़त और लाइसेंस के रिहायशी इलाके में चलाया जा रहा था। इस हुक्का सेंटर के ऑपरेटर की शिनाख्त 23 साला मोहम्मद तनवीर के तौर पर की गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। साथ ही हुक्का सेंटर, हुक्के का सामान, फ्लेवर्स और दीगर मुतल्लिका अशिया भी जब्त की गईं। पुलिस ने मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि गैर कानूनी हुक्का सेंटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और ऐसे गैर कानूनी कारोबार को रोकने के लिए बाकायदा तलाशी मुहिम भी अंजाम दी जाएगी। तेरा किसका घर है रे? बैठो।
चारमीनार जोन टास्क फोर्स ने चादरघाट के हुदूद में ममनुआ स्टेरॉइड्स की फरोख्त का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने खदीम मलकपेट के साकिनान शेख समीर और वसीम खान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान के पास से ममनुआ मेफेटामाइन के 20 इंजेक्शन्स जब्त किए गए। पूछताछ के दौरान मुलजिमीन ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो कोरियर के ज़रिए दिल्ली से ये इंजेक्शन मंगवाया करते थे। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। हज 2026 की तैयारियों का आगाज। चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना खुसरो पाशा ने हॉस्पिटल का किया दौरा। टीका अंदाजी के अमल का किया तफसीली मुआयना। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन मगरबी बंगाल के असम्बली इंतखाबात में हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान। मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से कोई बेघर नहीं होगा। अवाम में गुमराह कुन प्रोपेगेंडा न किया जाए। कौंसिल में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिया बयान। बीआरएस पार्टी ने असेंबली की कार्रवाई से किया वॉकआउट। हुकूमत पर रिटायर्ड मुलाजिमीन के मसाइल की अदम यकसुई का लगाया इल्जाम। संतोष नगर के मोइन बाग में 26 साल नौजवान का किया गया कत्ल। महलूक के साथियों की कार्रवाई। आउटर रिंग रोड पर खौफनाक सड़क हादसा। एक शख्स हलाक और 3 हुए जख्मी। मैलादेवपल्ली में हुक्का सेंटर पर किया गया धावा। 10 अफराद को लिया गया तहवील में। बंदागुड़ा में वाक़े प्लास्टिक गोदाम में अचानक आतिशज़दगी हादसा। कसीर माली नुकसान का लगाया गया तखमीना। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।